A very warm good morning to one and all. Hope I'm audible over there. Yes or no? Yes, sir. Okay, well, so we'll see the recap of a previous lecture. Then we'll start with the major important block cipher data encryption standard. So in the previous lecture, we have covered the basics of block ciphers, under which we have seen the design issues specific to block ciphers. So in design issues, we have seen the first and most important point related to design is S-box or T-box design. So we are terming S-box as a substitution box or confusion box. We are terming T-box as a transposition box, or we may term it as a diffusion box. So most important aspect of designing a block cipher is the design of S or T boxes, because almost all the block ciphers or the ciphers that we have, they are fully based on the S box or T boxes. Either they are carrying out encryption or decryption by using substitution or permutation. So that's why it's too much important to design the appropriate S box or T box. So we have seen certain points related to its design and the expectations that we have from our S boxes and T boxes. So we have mentioned that the S box or T box design, we have to design in such a way that the output should not be the linear function of input bit. If there is a difference in one bit at the input, so we are expecting the huge differences. We are expecting an avalanche effect in our output. So we have seen all these things in earlier class itself. I'm invoking a pointer. So input that differ in one bit should generate output that differ in many bits. So each row in S box should be a permutation of the possible input or output values. Overall, you have to design a S box or T box in such a manner so that there is a huge differences, there is a strict avalanche effect in the outcome result by your S box or T box. We have done the second consideration related to design issue as a number of rounds. So number of rounds में मैंने आपको स्पेसिफाई किया था कि number of rounds increase करने से आपका जो साइफर टेक्स्ट का क्वालिटी है वो इम्प्रूव होता है, बट उसका एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि आपका साइफर जो है वो अगर n नंबर ऑफ राउंड्स के लिए ऑपरेट करते हैं तो उसका एनकोड या डिकोड रेट जो है वो जो है स्लो हो जाता है, एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन प्रोसेस स्लो हो जाती है, साथ साथ जो प्रोसेसिंग पावर का डिमांड होता है वो बढ़ जाता है। तो इसलिए हम लोगों को क्या करना है कि एक जो है बैलेंस डिसीजन लेना है, in the sense number of rounds should be selected to make the effects of advanced attacks, differential, linear, etc. be similar to exhaustive searches. तो हमें अपने डेटा या इंफॉर्मेशन के साथ में कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। डेटा या इंफॉर्मेशन को जिस लेवल का सिक्योरिटी चाहिए उसके अकॉर्डेंस जो है आप नंबर ऑफ राउंड्स इंक्रीज कीजिए और एक बैलेंस जो है डिसीजन लेकर के अपने डेटा या इंफॉर्मेशन को जो आप डेस्टिनेशन को जो है हैंड ओवर कीजिए। जैसे आप जानते हैं नंबर ऑफ राउंड्स इंक्रीज करने से आपके जो है साइफर का क्वालिटी, साइफर टेक्स्ट का क्वालिटी इंप्रूव होता है, बट उसका जो है एडवर्स इफेक्ट ये होता है कि कॉस्ट करता है रिड्यूस परफॉर्मेंस में, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन रेट स्लो होता है। तो हमें एक जो है बैलेंस डिसीजन लेना है। ये जो सेकंड पॉइंट हम लोगों ने देखा था। थर्ड पॉइंट में मैंने आपको जो है स्क्रैम्बलिंग फंक्शन के बारे में बताया था। तो स्क्रैम्बलिंग फंक्शन जो है ये टोटली जो है आपके एस बॉक्सेस और टी बॉक्सेस पे डिपेंडेंट है, बिकॉज every scrambling function is making the utilization of your S boxes and T boxes. तो S boxes और T boxes अगर आपको नॉन लीनियर रिजल्ट देते हैं तो डेफिनेट है आपका स्क्रैम्बलिंग फंक्शन भी नॉन लीनियर जो है रिजल्ट देगा। यहाँ पे जो है दो पॉइंट्स हैं, एक तो जो है सैक जो है टर्म किया जाता है स्ट्रिक्ट एवलांच क्राइटेरिया,
तो आउटपुट में जो है वेरिएशंस रहें, आउटपुट में ह्यूज वेरिएशंस कोई जो है एवलांच जो है टर्म किया जाता है। स्ट्रिक्ट एवलांच क्राइटेरिया आपके फंक्शन में पजेस्ट करना चाहिए। बिट इंडिपेंडेंस क्राइटेरिया होना चाहिए, इन द सेंस एनी टू आउटपुट बिट शुड चेंज इंडिपेंडेंटली व्हेन सम इनपुट बिट इज चेंज। इनपुट बिट अगर कॉमन भी रहते हैं, सेम भी रहते हैं, तो भी जो है आउटपुट बिट में जो है वेरिएशन होना चाहिए। तो ये जो है हमारे एक्सपेक्टेशंस हैं एस बॉक्सेस और टी बॉक्सेस से, जिसको हम लोगों ने देखा। प्रिंसिपल्स में मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जिसमें हम लोगों ने जो है 3 ब्लॉक्स लिए थे, 4 एंड 4। तो इनको जो है इंडिपेंडेंटली जो हम लोगों ने एनक्रिप्ट किया था। तो एनक्रिप्ट करते समय जैसे हम आपको स्पेसिफाई करें कि इस रिस्पेक्टिव एनक्रिप्शन एल्गोरिथम में मान चलते हैं कि हमारा जो की है, जस्ट टेक एन एग्जांपल हियर, आई एम ड्राइंग दैट रिस्पेक्टिव की बाय यूजिंग पेन। तो यहाँ पे जैसे मैं एक की लगाता हूँ, ये स्पेसिफिक आपका की है, इधर भी जो है आपका जो वैसे ही की है। तो इन रिस्पेक्टिव जो है एन्क्रिप्शन अल्गोस के साथ अगर हम किसी की को ऑपरेट करते हैं, की अगर कॉमन है, इनपुट ब्लॉक आपका कॉमन है, तो यहाँ पे जो रिजल्टिंग साइफर टेक्स्ट है, जैसे ये जो है पहला ब्लॉक है 4, उसको आपने एनक्रिप्ट किया बाय यूजिंग ए स्पेसिफिक कॉमन की, यू गॉट आउटपुट अगेन VFA एंड परसेंटेज। दूसरा ब्लॉक है अंडरस्कोर एंड, इसको आपने एनक्रिप्ट किया, कॉमन की है, सभी जो है ब्लॉक्स के लिए कॉमन की हम यूज कर रहे हैं। आउटपुट जो हमको रिजल्ट हो रहा है यहाँ पे जो है दिख रहा है। देन अगेन आई एम गेटिंग अ रिपीटेटिव ब्लॉक दैट आई एम हैविंग अगर 4 को जो एनक्रिप्ट कर रहे हैं, की जो है कॉमन है, की कॉमन है, एल्गोरिथम कॉमन है, इनपुट ब्लॉक जो है कॉमन है, तो उस केस में जो आउटपुट रिजल्ट होगा वो जो है कॉमन रहेगा, VFA परसेंटेज। तो कॉमन अगर आपको जो है आउटपुट्स मिल रहे हैं, तो उस केस में प्रॉब्लम होता है लीनियरिटी स्पेसिफिक। हमारा जो डिजाइन इश्यूज है उसमें से जो है मतलब मेजर जो डिजाइन इशू है भैया, हमें लीनियर आउटकम नहीं चाहिए। बट यहाँ क्या हो रहा है कि इफ योर इनपुटेड ब्लॉक्स दे आर कॉमन, इफ योर एल्गोरिथम इज कॉमन एंड कीज आर कॉमन, इन दैट केस देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट योर ब्लॉक साइफर इज गोइंग टू रिजल्ट ए लीनियर आउटकम। अब यहाँ पे पहले ब्लॉक जो है इसके लिए सेम आउटपुट, ये जो है फिर सेकंड ब्लॉक रिपीट हो रहा है 4, उसके लिए सेम आउटपुट है। तो इसका जो इफेक्ट होगा वो ये रहेगा कि कोई जो है इंट्रूडर है, हैकर, एनक्रिप्टेड डेटा को जो है जब भी आप ट्रांजैक्ट करते हैं, सोर्स टू डेस्टिनेशन जो है फॉरवर्ड करते हैं, तो उस केस में पॉसिबिलिटी बनता है कि वो रिस्पेक्टिव डेस्टिनेशन तक पहुंचने के पहले ही जो है कोई ब्रूट फोर्स अटैकर जो है उसको अटैक करे, उसको मॉडिफाई करे, ऑल्टर करे या चेंज करे। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम जो है, इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए हमें जो ब्लॉक साइफर्स हैं, इन ब्लॉक साइफर्स को किसी न किसी एल्गोरिथमिक मोड में ऑपरेट करना रहेगा, जिसको मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताया था। सो वी हैव स्पेसिफाइड द नेम ऑफ 4 एल्गोरिथमिक मोड। नंबर 1 जो है हमने आपको बताया था ECB, जिसे इलेक्ट्रॉनिक कोड बोला जाता है। सेकंड है साइफर ब्लॉक चेनिंग। थर्ड है साइफर फीडबैक CFB। फोर्थ है OFB, जिसे बोला जाता है आउटपुट फीडबैक। तो ये जो आपका लीनियर आउटकम आ रहा है, जैसे यहाँ पे 4 आया है, या पर्टिकुलरली ये साइफर टेक्स्ट है, इसको जो हम टर्म कर रहे हैं CT, ये CT1 पहले ब्लॉक का है, CT2 जो है आपका सेकंड ब्लॉक का है, CT3 जो है थर्ड ब्लॉक का आपका आ रहा है। तो अब यहाँ देखेंगे फर्स्ट ब्लॉक जो है और थर्ड ब्लॉक जो है सेम है, उसका जो रिजल्टिंग CT1 और CT3 जो है देखो दोनों कॉमन है। तो ये ओवरऑल क्या दिखा रहा है कि यहाँ पे लीनियरिटी है। वी आर नॉट एक्सपेक्टिंग लीनियर आउटकम। लीनियरिटी स्पेसिफिक जो है इफेक्ट्स को नलीफाई करने के लिए हमको क्या करना रहेगा कि इन ब्लॉक साइफर्स को किसी न किसी अल्गोरिथमिक मोड में ऑपरेट करना रहेगा। ठीक है, तो अल्गोरिथमिक मोड्स अभी सिर्फ आप जो है नोट कर लीजिए। आफ्टर DES हम आपको जो है डिटेल में एल्गोरिथमिक मोड्स क्या है, कैसे वर्क करते हैं, उनको बताएंगे। बट एट प्रेजेंट सिंपली नोट डाउन दैट वी आर हैविंग 4 एल्गोरिथमिक मोड्स। दे आर नथिंग बट योर ECB, CBC, CFB एंड OFB। ECB का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रॉनिक कोड बुक। उसके बाद CBC साइफर ब्लॉक चेनिंग, CFB साइफर फीडबैक, OFB जो है आपका आउटपुट फीडबैक है।
अब इस ब्लॉक डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं तो ये साइफर टेक्स्ट आप जो डेस्टिनेशन यूजर को फॉरवर्ड करेंगे, डेस्टिनेशन यूजर जो है जिस की का यूटिलाइजेशन करके एनक्रिप्ट किया गया है, अगर सिमेट्री का है तो सिमिलर जो है कि यूटिलाइज करके जो है कोड को या साइफर टेक्स्ट को डिसाइफर करेगा और प्लेन टेक्स्ट जो है यहाँ पे उसको मिलेगा। सेम इज द केस विथ योर अदर ब्लॉक्स टू। तो आपका ब्लॉक साइफर है इन द सेंस हर स्पेसिफिक ब्लॉक जो है इंडिपेंडेंटली प्रोसेस होता है, इंडिपेंडेंटली एनक्रिप्ट होता है, एट वन गो एनक्रिप्ट होगा। कॉमन की यूज हो रहे हैं, कॉमन आपका पीटी ब्लॉक है तो कॉमन जो है वो सीटी रिजल्ट करेगा, जो कि एक मेजर प्रॉब्लम है। इस प्रॉब्लम को जो है ओवरकम करने का तरीका ये है कि हमें जो है ब्लॉक साइफर्स को किसी न किसी एल्गोरिथमिक मोड में ऑपरेट करना रहेगा, जो कि आपके जो है प्रॉब्लम को, लिनियरिटी से रिलेटेड इफेक्ट्स को नलिफाई करेंगे। तो यहाँ जैसे मेंशन किया गया है, जिसको मैंने अभी जस्ट प्रीवियस ब्लॉक डायग्राम में आपको एक्सप्लेन किया, 4 एंड 4 को हम एनक्रिप्ट कर रहे हैं। 4 और 4 जो कॉमन है, जिसकी वजह से उसका सीटी जो है कॉमन है। रिपीटिंग ब्लॉक्स हैं, रिपीटिंग की है, रिपीटिंग साइफर है, मतलब कॉमन साइफर है, तो उस केस में जो है आपका रिपीटेटिव जो है साइफर टेक्स्ट जनरेट होगा, जो कि लीनियर आउटकम जो है रिजल्ट करता है। तो यहाँ इंपॉर्टेंट बात आप इस पॉइंट को देखेंगे, इवन इफ ए क्रिप्ट एनालिस्ट, सो यू आर हैविंग आइडिया अबाउट अ क्रिप्ट एनालिस्ट। क्रिप्ट एनालिस्ट क्या होता है या कौन होता है? एनीवन? इफ समवन इज लिसनिंग जस्ट लेट मी नो, what's the role or responsibility of a crypt analyst? I'm audible हम भी? Just let me know whether I am audible and visible or not. हम audible हैं या नहीं? Yes, sir. Okay, so just let me know the crypt analyst, something about crypt analyst or crypt analysis. Sir, a crypt analyst is a person who performs the breaking of the code. करेक्ट है। तो क्रिप्ट एनालिसिस जो है कोड ब्रेकिंग प्रोसेस है। इस कोड ब्रेकिंग प्रोसेस को कैरी करने वाला जो पर्सन है वो जो है क्रिप्ट एनालिस्ट है। तो क्रिप्ट एनालिस्ट जो है सिंपली एक तरह से ब्रूट फोर्स अटैक जो है कैरी करता है। ही इज नॉट हैविंग आइडिया अबाउट साइफर, ही इज नॉट हैविंग आइडिया अबाउट की, बट ही इज ट्राइंग टू ब्रेक द कोड, ही इज ट्राइंग टू डिसाइफर द कंटेंट फ्लोइंग ओवर द चैनल। अब जैसे मान चलिए ब्लॉक साइफर है, उसमें जो है लिनियरिटी है, कुछ कंटेंट, कुछ ब्लॉक्स जो है आपके जो कि सीटी के फॉर्मेट में है वो ट्रेवल कर रहे हैं, तो इट मे बी पॉसिबल कि आपका जो है कंप्लीट वर्ड जो है वो डिसाइफर कर ले, या कुछ पार्शियल जो है ब्लॉक्स को जो है डिसाइफर कर ले। अब यहाँ कंसिडर कीजिए कि आपका जो क्रिप्ट एनालिस्ट है ही मेक्स द चेंज लाइक डेबिट टू क्रेडिट एंड क्रेडिट टू डेबिट इन दी फंड ट्रांसफर मैसेज। तो फंड ट्रांसफर मैसेज हो रहा है, बार बार जो है क्रेडिट या डेबिट से रिलेटेड जो है डिटेल्स जो है आपके जो है ट्रांजैक्ट होते हैं एनक्रिप्टेड फॉर्मेट में। मान चलिए क्रेडिट और डेबिट स्पेसिफिक कंटेंट को जो डिसाइफर या डिकोड कर लेता है और क्रेडिट की जगह डेबिट और डेबिट की जगह क्रेडिट राइट कर देता है, तो जो है बहुत बड़ा जो है प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सो टू डील विथ अबो प्रॉब्लम्स ऑफ ब्लॉक साइफर, ब्लॉक साइफर्स आर यूज्ड इन चेनिंग मोड। यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया था कि ब्लॉक साइफर स्पेसिफिक जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को नलिफाई करने के लिए, ब्लॉक साइफर का मेजर प्रॉब्लम मैंने बताया कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ लीनियर आउटकम, देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ लिनियरिटी। So in order to overcome the linear effect, linear outcome, we have to operate our block ciphers in a chaining mode। ठीक है, तो 4 अल्गोरिथमिक मोड्स हैं, उसमें से जो है एक आपका चेनिंग मोड है। चेनिंग मोड कैसे रहता है, कैसे वर्क करता है, उसको हम डिटेल में देखेंगे। बट अभी यहाँ पे आप ध्यान रख रहे हैं कि जितने भी ब्लॉक साइफर्स हैं उसमें प्रॉब्लम है रिलेटेड टू लीनियर आउटकम पॉसिबिलिटी। हमने प्रीवियस क्लास में जो एक फिस्टल स्कीम या फिस्टल साइफर देखा। फिस्टल साइफर का जो है ब्लॉक डायग्राम मैंने आपको डिटेल में जो एक्सप्लेन किया। तो फिस्टल एक स्ट्रक्चर है, एक टेम्पलेट है, एक स्कीम है जो कि मॉडर्न ब्लॉक साइफर्स के लिए जो बेसिस है, जिसमें जैसे यहाँ पे आपको जो है विजुअलाइज हो रहा है आपका इनपुटेड मैसेज ब्लॉक, जिसको पीटी कहते हैं, उसे 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट और राइट।
राइट पार्ट को आप स्क्रैम्बलिंग फंक्शन के थ्रू जो है प्रोसेस करते हैं। स्क्रैम्बलिंग फंक्शन में जो है की वगैरह आप जो है मिक्स करते हैं, देन जो आउटकम आ रहा है उस रिस्पेक्टिव आउटकम को जो है लेफ्ट पार्ट के साथ में एक्सऑर करके Ri+1 जनरेट कर रहे हैं। आफ्टर दैट जो Ri है उसको एज इट इज आप कॉपी करके Li+1 जो है जनरेट करते हैं। देन आप अगर चाहें इसी लोकेशन पे आप आउटपुट लेना चाहते हैं, सीटी लेना चाहते हैं, तो उस केस में इनको जो है पर्टिकुलरली इंटरचेंज करके राइट पार्ट को लेफ्ट में ले आइए, Li+1 को राइट में ले जाइए और Mi+1 जनरेट कर रहे हैं इन द सेंस मैसेज ब्लॉक और इंटरमीडिएट सीटी फॉर ए रिस्पेक्टिव मैसेज फॉर ith round. So already we have discussed all these things. Simply we are seeing the recap of a previous lecture. और ये काफी इम्पोर्टेंट है, इस पे जो है हर बार जो है क्वेश्चन आता है पिस्टल स्कीम या पिस्टल टेम्पलेट पे कोई ना कोई क्वेश्चन रहता है। एंड द रीजन बिहाइंड दिस इज पिस्टल स्कीम इज यूज्ड बाय मोस्ट ऑफ द एल्गोरिथम्स लाइक DES, IDEA एंड RC5। तो जितने भी मॉडर्न आपके जो है एल्गोरिथम्स हैं, मेजर जो है मतलब आपके एल्गोरिथम्स हैं, जैसे डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जिसको अभी हमें देखना है, तो ये सब जो हैं आपके पिस्टल स्कीम, पिस्टल टेम्पलेट को जो फॉलो करते हैं। और पिस्टल स्कीम या पिस्टल टेम्पलेट इसे क्यों टर्म किया जाता है उसको भी मैंने आपको बताया है। यहाँ पे मैसेज ब्लॉक साइज जो है आपका अननोन है, मतलब आप इसको फिक्स कर सकते हैं। मैसेज ब्लॉक साइज फिक्स करेंगे 32 बिट या 64 बिट या उससे ज़्यादा 128 बिट का या 8 बिट का है, आप अपने हिसाब से जो डिसाइड कर लीजिए। फिर इसके बाद ये जो आपका स्क्रैम्बलिंग फंक्शन है आपका अननोन रहता है, की लेंथ अननोन रहता है, तो ये पैरामीटर्स अननोन है, नंबर ऑफ राउंड्स अननोन है, तो इनको आप फाइनलाइज करके एक अपना जो है साइफर प्रपोज कर सकते हैं। तो एक जो है टेम्पलेट है, एक जो है बेस है, इस ब्लूप्रिंट या बेसिक का यूटिलाइजेशन करके कोई साइफर जो है प्रपोज कर सकता है। और मॉडर्न ब्लॉक साइफर जैसे बेस, आइडिया, RC5 ये सब जो है पिस्टल स्कीम में पिस्टल टेम्पलेट पे बेस्ड हैं। तीन चीज़ों को ऑलरेडी मैं आपको स्पेसिफाई कर चुका हूँ अर्लियर क्लासेस में। Already we have drawn this block diagram related to encryption and decryption. So just we have discussed that Fistel doesn't specify block size, key size or key length, number of rounds, round key generation process, algorithm, then scrambling function. ये सब पैरामीटर्स अननोन हैं, इनको आप जो फिक्स करके जो है पिस्टल स्कीम का यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, पिस्टल साइफर को आप यूज कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे मैसेज ब्लॉक जो है लेफ्ट और राइट पोर्शन के थ्रू जो प्रोसेस हुआ, स्क्रैम्बलिंग फंक्शन के थ्रू K1 जो है मिक्स हुआ, XOR होकर के R2 जनरेट हुआ, फिर से इसको जो है सेकंड जो है राउंड के लिए जो है प्रोसेस कर रहे हैं, K2 यूज हुआ, और यहाँ सेकंड राउंड के आउटपुट को जो है एज ए सीटी टर्न कर रहे हैं। तो आप इसे n नंबर ऑफ राउंड्स के लिए जो ऑपरेट कर सकते हैं, 2 राउंड, 3 राउंड, जितने भी राउंड्स आपको लगते हैं डिजायर्ड, उतने राउंड्स के लिए इसको ऑपरेट करके सीटी जो है गेन कर सकते हैं। अब हम देखेंगे DES, डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड। आई थिंक some of you have done the utilization of data encryption standard, or at least you are familiar with the DES. So we'll see the brief history related to DES, because sometime in examination they are asking about the basics or the history of data encryption standard. So in 1973, NBS, National Bureau of Standard, came with a RFP. तो RFP इन द सेंस एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जो होता है, इन लोगों ने कॉल किया, और RFP कॉल करने का जो इंटेंशन था वो ये था to develop a commercial encryption standard, एक कमर्शियलाइज्ड एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो कि वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड हो, ऐसा जो है एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है डेवलप करने के लिए 1973 में NBS जो है RFP के साथ में आता है। तो इस RFP के अगेंस्ट में बहुत सारे जो रिसर्चर्स थे, बहुत सारी जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस, एकेडमिशियंस, इन सब ने अपने अपने जो है साइफर्स जो प्रपोज किए। तो उसमें से एक साइफर जो है प्रपोज किया गया IBM के द्वारा। सो IBM proposed its strong Lucifer algorithm और Lucifer cipher which was developed by Fistel and his teammates। तभी हम लोगों ने जो है Fistel cipher देखा। तो Fistel cipher जो है Fistel ने डेवलप किया था, इसलिए जो है हम टर्म कर रहे हैं। तो IBM जो है DES के RFP के अगेंस्ट
डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड RFP के अगेंस्ट में अपना ल्यूसीफर साइफर जो है प्रपोज करता है, जिसको क्रिस्टल और उसके जो टीममेट्स ने प्रिपेयर किया था। नेक्स्ट क्या होता है कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी ये जो है जितने भी सबमिटेड साइफर्स थे उनको जो है रिगरसली जो है स्क्रूटनाइज करता है। स्क्रूटनाइज करने के बाद में, वेरीफाई करने के बाद में, टेस्ट करने के बाद में उन लोगों ने जो है कुछ फाइनलिस्ट को जो है आइडेंटिफाई किया। उसमें से एक IBM का ल्यूसीफर साइफर भी था। So NSA, they have requested to weaken the strength of Lucifer by shortening the key length. तो NSA ने जो है IBM को या पर्टिकुलरली फिस्टल एंड टीममेट्स को जो है सजेस्ट किया कि भी आपका आपके प्रपोज्ड साइफर का जो की लेंथ है उसको जो है थोड़ा सा रिड्यूस कीजिए, जिससे उसकी सिक्योरिटी भी जो है रिड्यूस हो और मेजर जो मतलब आपका कंप्यूटेशनल पावर स्पेस के जो डिमांड्स और बाकी सब चीजें थी वो भी जो है कम हो। तो इसको जो है उन लोगों ने जो है सजेशंस दिए हैं, मतलब की लेंथ वगैरह जो है या उसकी सिक्योरिटी वगैरह को जो है वीकन करने के लिए जो है सजेस्ट किया। देन NSA हैज डन सम चेंजेस इन IBM's ल्यूसीफर एल्गोरिथम। तो रिगरस जो है स्क्रूटनी, मॉडिफिकेशन और चेंजेस के बाद में IBM का जो ल्यूसीफर साइफर था, that same cipher was recognized or accepted as a DES data encryption standard in 1976। तो आप देख रहे हैं जैसे इनिशिएशन जो है RFP का कब हुआ, 1973 में। 1973 में RFP कॉल किया गया। RFP के अगेंस्ट में बहुत सारे रिसर्चर्स, बहुत सारे एकेडमिशियंस, बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने अपने जो है साइफर्स जो है प्रपोज किए। उन सभी साइफर्स को रिगरसली जो है स्क्रूटनाइज किया गया। कुछ फाइनलिस्ट को सिलेक्ट किया गया। फाइनलिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद में जो आपका ल्यूसीफर साइफर था उसमें जो है कुछ चेंजेस जो है सजेस्ट किए गए। चेंजेस को इनकॉर्पोरेट करने के बाद, चेंजेस को जो है अपडेट करने के बाद में IBM के ल्यूसीफर साइफर को एज ए डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है 1976 में जो है एक्सेप्ट किया गया। तो यहाँ पे जो है हम लोग देखते हैं डिजाइन क्राइटेरिया फॉर DES। So just now we have seen the details related to NSA and NBS। तो NSA हमने टर्म किया नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी, और NBS जो होता है वो है नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स। तो NBS जो है हमने टर्म किया था भाई कि भी NBS नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड्स ने जो है RFP कॉल किया था। तो RFP कॉल करते समय NBS ने जो है कुछ स्टैंडर्ड्स जो है सेट करके रखे थे कि भाई एक स्पेसिफिक साइफर का आप RFP हमें दीजिए और उस रिस्पेक्टिव RFP के अगेंस्ट में जो आप साइफर सबमिट कर रहे हैं तो वो जो है ये स्पेसिफिक नॉर्म्स इन डिजाइन क्राइटेरियाज को जो है उसने जो है फुलफिल करना चाहिए। तो विल सी द डिजाइन क्राइटेरिया सेट बाय NBS। सो NBS सेट द फॉलोइंग डिजाइन क्राइटेरिया फॉर दिस। पहला जो है डिजाइन क्राइटेरिया, इस पे क्वेश्चन आता है, इसको आप जो है इन पॉइंट्स को जो है नोट कर लेंगे, जो बुलेट्स में जो है पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो हर बार जो है मतलब 2-4 नंबर या पूरा फुल मार्क्स के लिए जो है क्वेश्चन आता है। इट इज डिजाइन क्राइटेरिया और DES डिजाइन क्राइटेरिया सेट बाय NBS। तो NBS had set the following design criteria for DES। Number 1, algorithm must provide high level of security। तो पहला जो है सबसे इम्पोर्टेंट आपका जो क्राइटेरिया है कि आपके एल्गोरिथम ने हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी जो है प्रोवाइड करना चाहिए। सेकंड है एल्गोरिथम मस्ट बी कंप्लीटली स्पेसिफाइड। तो जो भी एल्गोरिथम है कैसे वर्क करेगा, क्या काम करेगा, उसके इंटरनल्स क्या हैं, किस तरह से जो है प्रोसेसिंग होगा, राउंड की कैसे जनरेट होगा, आपका जो स्क्रैम्बलिंग फंक्शन है वो क्या रहेगा, तो ये सभी डिटेल्स जो है कंप्लीटली जो है स्पेसिफाइड होनी चाहिए। उसी को जो है DES एज ए साइफर जो है एक्सेप्ट किया जाएगा, डेटा एन्क्रिप्शन स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया जाएगा। देन next point is security of algorithm must reside in its key value। कोई भी जो है आप साइफर देखिए, कोई भी पर्टिकुलर आप एल्गोरिथम देखिए, हर स्पेसिफिक एल्गोरिथम का सेफ्टी और सिक्योरिटी उसके की वैल्यू में जो है रहता है, उसके पास वैल्यू में रहता है। जितने भी जो है एल्गोरिथम्स हैं, चाहे आप RSA लीजिए, DES लीजिए, ACE लीजिए, आइडिया लीजिए, तो the internal working of each and every algorithm is known to
ऑल द यूजर्स, सबको मालूम है कौन सा एल्गोरिथम कैसे वर्क करता है, क्या इंटरनल प्रोसेसिंग होती है। सिर्फ जो कॉम्प्लेक्सिटी है, जो अननोन पैरामीटर है, वो उसका की वैल्यू है। तो की वैल्यू को यूजर जो है डिसाइड करता है। जब भी आप किसी साइफर को यूज कर रहे हैं, जब भी आप कोई डेटा या कंटेंट एनक्रिप्ट करते हैं, तो उस समय आप अपना ओन की डिसाइड करते हैं, और की को जो है आप कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, की को आप जो है सिक्योर रखते हैं, उसे कॉन्फिडेंशियल वे में जो है डेस्टिनेशन को जो है कन्वे करते हैं। सो important thing over here is security of algorithm must reside in its key value। तो ये जो है एक मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट था, जिसको जो डिजाइन क्राइटेरिया में उन्होंने स्पेसिफाई किया। अगला पॉइंट है द एल्गोरिथम मस्ट बी अवेलेबल टू ऑल। तो जो भी एल्गोरिथम डिजाइन होगा, वो जो है सभी को अवेलेबल होना चाहिए। नेक्स्ट है इट शुड बी अडेप्टेबल फॉर यूज इन डाइवर्स एप्लीकेशन। तो अडेप्टेबिलिटी एक जो है मेजर जो है क्राइटेरिया था, अडेप्टेबल होना चाहिए। डाइवर्स एप्लीकेशन है, कोई भी एप्लीकेशन है, तो उसमें जो है मतलब वो यूटिलाइज हो सके, ऐसा जो है पर्टिकुलर आपका एल्गोरिथम होना चाहिए। Next point is it should be efficient to implement in hardware. It should be efficient to use or implement in software. उसके बाद efficient होना चाहिए यूज में, उसे वैलिडेट करते आना चाहिए, पोर्टेबल होना चाहिए, एक्सपोर्टेबल होना चाहिए। तो ये सब जो है क्राइटेरिया बेस्ड डिजाइन के लिए एनबीएस ने सेट करके रखे। इसमें अगर इम्पोर्टेंट जो है क्राइटेरिया अगर हम देखते हैं, तो उस केस में हम काम करेंगे कि आपका जो है जो भी साइफर है वो हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी उसने प्रोवाइड करना चाहिए, उसके इंटरनल डिटेल्स सबको नोन होने चाहिए, उसका सेफ्टी या सिक्योरिटी उसके की वैल्यू में जो है रिलाई करना चाहिए, देन वो जो है सभी को अवेलेबल होना चाहिए। ये सबसे जो है इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ऐसा नहीं कि मतलब साइफर आपने डिजाइन कर लिया और उसका जो है अवेलेबिलिटी ही नहीं। तो अवेलेबिलिटी जो है ये मस्ट है, अवेलेबल होना चाहिए सबको। और बाकी जो है जैसे हार्डवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन है, उसका वैलिडेशन जो है पॉसिबल होना चाहिए, उसे एक्सपोर्ट करते आना चाहिए, पोर्टेबल रहना चाहिए। ये सब जो है पॉइंट्स हैं जिनको आपको जो है ध्यान में रखना है। और यहाँ जैसे इनको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, हाई लेवल ऑफ सिक्योरिटी, कंप्लीटली स्पेसिफाइड, की में जो है रिसाइड करना चाहिए, सभी के लिए अवेलेबल होना चाहिए, देन एफिशिएंट टू यूज, वैलिडेटेबल होना चाहिए, एक्सपोर्टेबल होना चाहिए। तो ये जो है पैरामीटर्स हैं, ये पर्टिकुलर डिजाइन क्राइटेरियाज हैं जिसको एनबीएस ने बेसिकली सेट करके रखा था। अब हम देखते हैं डेस स्ट्रक्चर। तो डेस स्ट्रक्चर या पर्टिकुलरली डेस बेसिक्स, डीईएस बेसिक्स, तो डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड के जो बेसिक्स हैं, जैसे आप जान रहे हैं डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड जो है कब एग्जिस्टेंस में आया है, 1976 में। यहाँ पे आप देख रहे हैं, मतलब यहाँ पे देख रहे हैं जो आपका डीईएस है, कौन से साइफर से जो है एक तरह से डिराइव हुआ है। सो इट्स बेस्ड ऑन योर ल्यूसीफर एल्गोरिथम डेवलप्ड बाय ट्विस्टेल एंड अदर्स। तो ल्यूसीफर पे बेस्ड है। 1973 में इनिशिएशन हुआ, 1976 में जाकर के ल्यूसीफर साइफर एक तरह से हम काम करेंगे रिनेम हुआ, जिसको पिस्टल ने डेवलप किया था या पिस्टल एंड टीम ने डेवलप किया था। तो वही जो है कुछ स्लाइट मॉडिफिकेशंस के साथ में 1976 में एज ए डेटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया गया। तो डेस डिजाइन क्राइटेरियाज, इन पॉइंट्स को आप जो है नोट करके रख लीजिए, क्योंकि हर बार एग्जाम में आते हैं। देन डेस स्ट्रक्चर और डेस बेसिक्स। तो कोई भी साइफर जब भी आपको एक्सप्लेन करना रहेगा, तो उसके जो है बेसिक्स जो है आपको ध्यान में रखने हैं। तो बेसिक्स में जो है सबसे इम्पोर्टेंट है पीटी का ब्लॉक साइज कितना रहेगा, आपका जो स्पेसिफिक नंबर ऑफ राउंड्स हैं वो क्या रहेंगे, स्क्रैम्बलिंग फंक्शन जो रहना है वो कैसा रहना है, आउटपुट कितने बिट का जनरेट करेगा, राउंड कीज कैसे रहेंगे, राउंड कीज को कैसे जनरेट करना रहेगा, कितने इटरेशंस परफॉर्म होंगे, कैसे स्क्रैम्बलिंग होगा। तो ये सब जो है बेसिक्स हैं। तो यहाँ आप ध्यान दे रहे हैं कि इन केस ऑफ डेस योर पीटी ब्लॉक साइज इज ऑफ 64 बिट। तो 64 बिट का आपका जो है पीटी ब्लॉक साइज है।
देन की लेंथ जो है यहाँ पे आप देखिए 56 बिट का है। की लेंथ जो है डेस में 56 बिट का है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओवर हियर इज इट इज जनरेटेड फ्रॉम ए 64 बिट बफर स्पेस। तो पीटी ब्लॉक साइज 64 बिट, जो की लेंथ है ये आपका 56 बिट का है, बट 56 बिट की लेंथ जो है जनरेट होता है 64 बिट बफर स्पेस से। तो 64 बिट बफर स्पेस से जो जनरेट होता है, ये जनरेट करने के लिए आप जो है यूज करते हैं पैरिटी डिस्कार्ड। इसे मैं आगे जो है डिटेल में बताऊंगा, बट यहाँ पे आप ध्यान में रखिए पैरिटी डिस्कार्ड प्रोसेस जो है यूज करेंगे। पैरिटी डिस्कार्ड प्रोसेस का यूज करके जो है कीज को जो है यहाँ पे जनरेट किया जाता है। तो सिंपल यहाँ 64 बिट का जो है पीटी ब्लॉक साइज है, की लेंथ आपका जो है 56 बिट का है, बट दिस 56 बिट कीज और 56 बिट की लेंथ इज जनरेटेड फ्रॉम 64 बिट बफर स्पेस। नेक्स्ट पॉइंट है फिक्स इनिशियल परम्यूटेशन, जो है आपके इनपुट ब्लॉक के ऊपर में परफॉर्म होता है। तो जो आपका प्लेन टेक्स्ट है 64 बिट का, जो प्लेन टेक्स्ट है यहाँ पे जो हम 64 बिट का प्लेन टेक्स्ट ले रहे हैं, इस रिस्पेक्टिव पीटी के ऊपर में पहला जो है एक फिक्स इनिशियल जो है परम्यूटेशन परफॉर्म किया जाएगा। तो फिक्स इनिशियल परम्यूटेशन और आखिरी में जो है सीटी जनरेट करने के पहले एक फिक्स फाइनल परम्यूटेशन जो है ऑपरेशन परफॉर्म होता है। इसको शॉर्ट में जो है आईपी टर्म करते हैं, आईपी एंड एफपी। आईपी स्टैंड्स फॉर इनिशियल परम्यूटेशन एंड जो आउटपुट जनरेट होता है सीटी जनरेट होता है, तो सीटी जनरेट करने के पहले एफपी परफॉर्म किया जाता है। एफपी स्टैंड्स फॉर फाइनल परम्यूटेशन। तो परम्यूटेशन इज नथिंग बट योर स्क्रैम्बलिंग। परम्यूटेशन को जो है हम टर्म कर सकते हैं आपका जो है ट्रांसपोजिशन या डिफ्यूजन। देखिए हम लोगों ने जो है देखा था एस बॉक्स और टी बॉक्स। एस बॉक्स केस में सब्स्टिट्यूशन होता है, टी बॉक्स केस में जो है ट्रांसपोजिशन होता है। ट्रांसपोजिशन को ही जो है हम परम्यूटेशन टर्म करते हैं। तो जो पीटी ब्लॉक है 64 बिट का, इस रिस्पेक्टिव 64 बिट ब्लॉक के ऊपर में फिक्स इनिशियल परम्यूटेशन ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा, जिसे आईपी टर्म किया जाएगा। ठीक है। और इसके बाद फर्दर जो है यहाँ पे 16 जो है राउंड की जो है जनरेट होते हैं। तो 16 राउंड कीज इन द सेंस आप जो भी रिस्पेक्टिव ब्लॉक है जिसको आपको जो है प्रोसेस करना है, पीटी जो है प्रोसेस करना है, पीटी को प्रोसेस करके सीटी जनरेट करना है, तो इस रिस्पेक्टिव 64 बिट ब्लॉक को जो प्लेन टेक्स्ट है इसे जो है प्रोसेस करने के लिए आपको जो है 16 जो है राउंड्स के थ्रू जो है प्रोसेस करना रहेगा। तो 16 राउंड्स के थ्रू जो है प्रोसेस करेंगे तो डेफिनेट है हर राउंड के अंदर जो है एक जो है की आप वहां पे मिक्स करेंगे। तो राउंड की जो है यहाँ पे है दे आर ऑफ 48 बिट ईच। देखिए कंफ्यूज मत होइए, पहला काम यहाँ पे आप नोट कर रहे हैं आपका पीटी ब्लॉक साइज जो है 64 बिट का है। की लेंथ जो है मास्टर की, इसको आप टर्म कर लीजिए। तो जो यूजर जो की डिसाइड करता है, जैसे आप पासवर्ड डिसाइड करते हैं अपने हॉटस्पॉट के लिए या किसी स्पेसिफिक जो है डिवाइस को सिक्योर करने के लिए जहाँ पे डीईएस लगा हुआ है, तो आप की लेंथ जो है डिसाइड करते हैं। तो की लेंथ जो है आप 56 बिट का लेते हैं, बट वो एक्चुअली जो है डिराइव होता है 64 बिट बफर स्पेस से बाय कैरिंग आउट पैरिटी डिस्कार्ड प्रोसेस। आपके पीटी पे फिक्स्ड इनिशियल परम्यूटेशन होगा। 16 जो है राउंड कीज आपके जो है जनरेट होंगे। तो 16 जो राउंड कीज है 16 राउंड कीज दे आर डिराइव्ड फ्रॉम दिस 56 बिट की। ये जो मास्टर की है इस रिस्पेक्टिव मास्टर की से आप 16 जो है राउंड की जनरेट करते हैं। बट यहाँ आप ध्यान दीजिए 16 राउंड की जो है दे आर ऑफ 48 बिट ईच। So these 48 bit keys, 16 round keys, they are generated from your 56 bit key length that you have decided. इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको जो है ध्यान में रखना है कि ये जितनी भी मतलब आपके राउंड कीज हैं, इन राउंड कीज के साथ में आपका स्पेसिफिक जो है ब्लॉक एक तरह से जो परम्यूट होता है, एक तरह से राउंड कीज मिक्स होती हैं। 16 राउंड्स के बाद में जो है आपको जो है एक तरह से आउटपुट मिलता है। So we'll see the details related to overall working of this, but at present important thing that you have to remember over here is PT block size is of 64 bit, की लेंथ जो है आपका 56 बिट का है,
जैसे हम मास्टर की अभी टर्म कर रहे हैं, तो 56 बिट की जो है ये यूजर डिसाइड करता है, बट एक्चुअली जो है ये जनरेट होता है 64 बिट बफर स्पेस से, और 64 बिट से 56 बिट की का जनरेशन जो है पैरिटी डिस्कार्ड प्रोसेस कैरी करके किया जाता है। पीटी ब्लॉक पे फिक्स इनिशियल परम्यूटेशन जो है प्रिपेयर किया जाएगा, फिक्स इनिशियल परम्यूटेशन ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा, जिसमें आप जो है एक तरह से ट्रांसपोजिशन करेंगे, और उसके बाद फर्दर जो है आप स्क्रैम्बलिंग फंक्शन वगैरह के थ्रू 16 राउंड्स के थ्रू जो है आप अपने पीटी ब्लॉक को जो है प्रोसेस करेंगे। हर स्पेसिफिक राउंड में 48 बिट का जो है राउंड की जो है उसके साथ मिक्स करेंगे। 48 बिट का जो राउंड की है ये जो है 56 बिट की से जो है जनरेट किया जाएगा। तो इस 56 बिट कीज का यूटिलाइजेशन करके 16 जो है आपके राउंड की जनरेट होते हैं। 16 राउंड की जो है 48 बिट ईच रहेंगे। इनका यूज करके आप जो है फिर फर्दर जो है राउंड्स के थ्रू जो है कीज को मिक्स करेंगे, और फाइनली जो आफ्टर 16 राउंड 16 इटरेशन जो है आपका साइफर टेक्स्ट जनरेट करेंगे। तो स्क्रैम्बलिंग फंक्शन को हम आगे देख रहे हैं, और आउटपुट जनरेट करने के पहले हम जो है इनवर्स इनिशियल परम्यूटेशन जो है परफॉर्म करेंगे, जिसको एफपी टर्म किया जाएगा। तो इनवर्स ऑफ इनिशियल परम्यूटेशन इन द सेंस एग्जैक्टली जो है आपका आईपी जो यहाँ पे परफॉर्म किया आपने, उसका जो है रिवर्स प्रोसेस जो है कैरी करेंगे, उसी को जो है टर्म किया जाता है फाइनल परम्यूटेशन। और फाइनल परम्यूटेशन होने के बाद में जो भी आउटकम आएगा उसे आप टर्म कर देंगे साइफर टेक्स्ट। यहाँ पे ओवरऑल स्ट्रक्चर है। इस ब्लॉक डायग्राम को जो है आप ध्यान में रखिएगा, प्रॉपरली जो है ड्रॉ कर लीजिए, इसको जो है समझने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे जो आपका एम दिख रहा है, इट्स नथिंग बट योर मैसेज ब्लॉक। तो मैसेज ब्लॉक मैंने आपको बताया है कितने बिट का रहेगा, 64 बिट का मैसेज ब्लॉक इन द सेंस पीटी ब्लॉक। तो पीटी ब्लॉक हमारा जो है 64 बिट का है। इस रिस्पेक्टिव पीटी ब्लॉक को हम दे रहे हैं इनिशियल परम्यूटेशन के लिए। तो इनिशियल परम्यूटेशन हो रहा है इन द सेंस यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तरह से हम ट्रांसपोजिशन कर रहे हैं। जो आपके 64 बिट्स हैं उनको हम ट्रांसपोज कर रहे हैं, उनको परम्यूट कर रहे हैं, उनकी पोजीशन को जो है शफल कर रहे हैं। एग्जांपल तौर पे जैसे आपने रो कॉलमर साइफर देखा, या पर्टिकुलरली आपने रेलफेंस साइफर देखा, तो रेलफेंस साइफर के केस में हम क्या करते हैं कि जो बिट पोजीशंस हैं, अल्फाबेट के जो पोजीशंस हैं, उन पोजीशंस को एक तरह से हम ट्रांसपोज करते हैं, उनके पोजीशन को जो है चेंज करते हैं। तो सिमिलर मैनर में यहाँ पे जो भी 64 बिट हम इनपुट कर रहे हैं उसके ऊपर में फिक्स इनिशियल परम्यूटेशन ऑपरेशन परफॉर्म होगा। ठीक है, बिट पोजीशन शफल होंगी, कैसे हो रही है उसको हम आपको आगे बता रहे हैं, कौन से बिट कहाँ पे जाएगा, फर्स्ट बिट की जगह पे क्या आएगा, वो सब डिटेल हम आपको बता रहे हैं। तो मैसेज ब्लॉक 64 बिट का है, उसके ऊपर फिक्स इनिशियल परम्यूटेशन ऑपरेशन जो है परफॉर्म होगा। इसके बाद ये इनिशियली परम्यूटेड बिट्स को जो है हम दे रहे हैं राउंड नंबर 1 को। तो राउंड नंबर 1 में इंटरनली क्या होगा उसको हम अभी आगे देख रहे हैं। तो राउंड नंबर 1 से लेकर के राउंड 16 तक जो है आप अपने इनिशियली परम्यूटेड ब्लॉक को प्रोसेस करते हैं। तो 16 राउंड्स के थ्रू जो प्रोसेस करते हैं। हर राउंड के अंदर में जो है आप एक 48 बिट का राउंड की जो है मिक्स करते हैं। यहाँ देखिए मैंने आपको जो है की के बारे में बताया, तो मास्टर की जो है हमारा क्या रहता है, कितने बिट का रहता है, एनीवन? होप यू आर लिसनिंग टू मी, सुन रहे हैं आप लोग? Yes or no? If someone is listening, just let me know or give me the response. Yes sir. ठीक है, तो आप बताइए जो आपका मास्टर की होता है कितने बिट का होता है? 56 बिट का मास्टर की कैसे जनरेट करते हैं? देखो हमने आप लोगों को बताया पैरिटी डिस्कार्ड प्रोसेस होता है। पैरिटी डिस्कार्ड में क्या होगा कि आपका जो 64 बिट बफर स्पेस है उसके जो है हर 8 बिट पोजीशन वाले बिट को जो है एक तरह से डिस्कार्ड कर देंगे, डिलीट कर देंगे, तो आपको जो है 56 बिट का की मिलेगा। तो 56 बिट की जो है मास्टर की रहेगा, उस रिस्पेक्टिव 56 बिट की से हम 16 राउंड की प्रिपेयर करेंगे। तो एक स्पेसिफिक जो है राउंड की का लेंथ 48 बिट रहेगा। तो ऐसे जो है 16 राउंड की K1 से लेकर के K16 तक जो है बनाए जाएंगे।
16 राउंड्स के थ्रू जो है आपका इनिशियली परम्यूटेड ब्लॉक जो है इटरेट होगा। 16th राउंड का जो भी रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को क्या किया जाएगा, यहाँ पे फाइनल परम्यूटेशन के लिए दिया जाएगा। तो फाइनल परम्यूटेशन जो है मतलब यहाँ पे अभी इसको जो है आप रिलेट कीजिए, इनिशियल परम्यूटेशन में जो प्रोसेस हो रहा है उसी का एग्जैक्ट रिवर्स प्रोसेस, इनवर्स प्रोसेस जो है फाइनल परम्यूटेशन में किया जाएगा। आप वैसे देखें तो इनिशियल परम्यूटेशन और फाइनल परम्यूटेशन जो है ये बहुत ज्यादा जो है सेफ्टी या सिक्योरिटी जो है ऐड नहीं करते हैं, दे आर सिंपली एडेड in order to slow down the software implementation process of your DES। तो डेस के सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को जो है स्लोअर डाउन करने के लिए आईपी और एफपी राउंड्स जो है यहाँ पे स्पेसिफाइड हैं। तो इनिशियल परम्यूटेशन में जो भी आप परम्यूटेशन कर रहे हैं, जो भी पर्टिकुलर आपके बिट्स का शफलिंग कर रहे हैं, तो उसी का रिवर्स प्रोसेस यहाँ पे फाइनल परम्यूटेशन में होगा और फाइनली परम्यूटेड ब्लॉक का जो आउटकम आएगा उसे हम जो है टर्म करेंगे सीटी। तो जैसे पीटी हमारा 64 बिट का है मैसेज ब्लॉक, तो सीटी कितने बिट का होगा, सीटी ब्लॉक साइज क्या होगा, जो भी आउटपुट रिजल्ट होगा वो कितने बिट का रहेगा। एनीवन? देखो भैया आप लोगों से रिस्पॉन्सेस मिलने चाहिए, नहीं तो जो है एक तरह से जो है मोनोटोनस हो जाता है, ना तो आप लोग हमें विजिबल हैं ना तो जो है कोई रिस्पॉन्स मिलता है। सो आई एम एक्सपेक्टिंग रिस्पॉन्सेस फ्रॉम योर एंड। कोई है अभी यहाँ पे? पीआर रोल नंबर्स कौन कौन है प्रेजेंट? प्रोविजनल रोल नंबर्स जो भी प्रेजेंट हैं वो अपना जो है नाम और पीआर नंबर हमें बता करके जो रिस्पॉन्स करें। नो वन? तो किसी भी प्रोविजनल रोल नंबर का जो है आज अटेंडेंस नहीं लगेगा, इनकेस प्रेजेंट रहेंगे तो भी ठीक है। तो जैसे मैंने आपको बताया पीटी ब्लॉक साइज 64 बिट है, तो डेफिनेट है जो आपका आउटकम प्रोड्यूस होगा, जो आपका साइफर टेक्स्ट रिजल्ट करेगा, उस साइफर टेक्स्ट का लेंथ भी जो है 64 बिट ही रहेगा। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो आपने यहाँ पे देखे हैं, मैसेज ब्लॉक को आपको जो है इनिशियली परम्यूट करना है, उसके बाद 16 राउंड्स के थ्रू प्रोसेस करना है, फाइनल परम्यूट करना है, सीटी जनरेट करना है। ये ब्लॉक डायग्राम काफी इंपॉर्टेंट है, ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है स्पेसिफाई करता है, ओवरऑल स्ट्रक्चर को जो है ड्रॉ करके आप जो है इसका बेसिक एक्सप्लेनेशन जो है देंगे। अब हम देखते हैं इंटरनल्स में जो है एक स्पेसिफिक राउंड के अंदर में क्या होता है, तो हर एक डिटेल को देखेंगे। इनिशियल परम्यूटेशन क्या है, राउंड कीज कैसे जनरेट होते हैं, एक राउंड के अंदर क्या ऑपरेशन होता है, एफपी क्या होता है, इन सबको हम डिटेल में देखेंगे। तो डीएस जो है काफी इंपॉर्टेंट है। डीएस अगर आप देखते हैं तो इसके ऊपर में जो है कंप्लीट बुक्स अवेलेबल हैं, हम लोग जो है यहाँ पे एक तरह से जिस्ट देख रहे हैं। तो डीएस के ऊपर में कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, हो सकता है कि आपको जो ओवरऑल वर्किंग पूछ लिया जाए, हो सकता है एक स्पेसिफिक राउंड के जो डिटेल्स आपसे पूछे जाएं, इट में भी पॉसिबल कि आपसे पूछ लिया जाए कि इनिशियल परम्यूटेशन और फाइनल परम्यूटेशन में क्या होता है, या राउंड की कैसे जनरेट होता है। 2 नंबर के लिए कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपका जो है जो की डिटेल्स हैं जो कि 56 बिट के हैं वो कैसे प्रिपेयर होते हैं, हाउ यू आर कैरिंग आउट पैरिटी डिस्कार्ड प्रोसेस। इन सब डिटेल्स को हम 1 बाय 1 जो है अभी देखते हैं। तो अभी देखिए जो है आपका इनिशियल परम्यूटेशन है, तो इनिशियल परम्यूटेशन जो है फिक्स इनिशियल परम्यूटेशन है, आपके जो है 64 बिट्स हैं, ठीक है। अगर आप 64 बिट्स को राइट करते हैं तो 1 2 3 4 ऐसा जो है आप राइट कर सकते हैं, 1 से लेकर के 64 बिट्स तक। अब यहाँ पे जो है क्या हो रहा है कि फर्स्ट बिट को जो है सब्स्टिट्यूट किया गया 58 से, सेकंड को 50 से, थर्ड को 42 से एंड सो ऑन। तो इसे अगर आपको जो है इजियर वे में रिमेम्बर करना है एग्जाम में राइट करने के लिए, तो आप यहाँ से स्टार्ट कीजिए, पहले 1 राइट कीजिए, 2 राइट कीजिए, 3 4 5 6 7 8, इस मैनर में जो आप यहाँ से राइट करना स्टार्ट कीजिए। अगर आपको जो है सिर्फ जो है
ध्यान रखना है एग्जाम में राइट करने के लिए। तो फिक्स इनिशियल परम्यूटेशन है इन द सेंस ये जो आपके बिट्स हैं, जैसे फर्स्ट बिट यहाँ पे है, अभी आ गया है, बट एक्चुअल इसकी पोजीशन यहाँ पे थी। सेकंड बिट यहाँ पे है, बट सेकंड बिट जो है 50th बिट से जो है सब्स्टिट्यूट हो गया। तो एग्जाम में राइट करने के लिए आप यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे जो है कर लीजिए। फिर यहाँ से 9 से स्टार्ट करेंगे, 9 10 11 12 13 14 15। तो इस महीना में जो है आप कंटिन्यूअसली प्रोसेस होते जाइए, तो प्रोसेस करते जाइए। तो 16 हो जाने के बाद अब यहाँ पे आप देखिए 17 से स्टार्ट करेंगे, 17 18 19 20 21 22 23 24। तो ये जो है ध्यान रखना है आपको। 24 होने के बाद फिर यहाँ पे आपका 25। तो इस प्रोसेस को जो है आप कंप्लीट कर लेंगे आप तो जो है 63। तो ये फिक्स इनिशियल परम्यूटेशन है। 1 to 64 जो बिट्स हैं, इन बिट्स को जो है आप परम्यूट कर रहे हैं, इनके जो पोजीशन को जो है चेंज कर रहे हैं, इनके पोजीशन को आप शफल कर रहे हैं। तो ये फिक्स है, मतलब पहले जो है बिट को 58 बिट से जो है सब्स्टिट्यूट किए, सेकंड को 58 से, थर्ड को 42 से, फोर्थ को 34 से। तो इस महीना में जो है आप अपने आईपी का इनिशियल परम्यूटेशन का यूटिलाइजेशन करके बिट को जो है शफल कर रहे हैं, बिट्स को जो है परम्यूट कर रहे हैं, उनको जो एक तरह से ट्रांसपोज कर रहे हैं। क्लियर है सबको? देखिए ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं आपको फिर से जो है रिपीट कर रहा हूँ कि जब इसे बनाना रहेगा आईपी ब्लॉक में क्या होता है, एफपी ब्लॉक में क्या होता है। तो एफपी में तो डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 1 to 64 आ जाएगा, बट आईपी के केस में, इनिशियल परम्यूटेशन के केस में फर्स्ट को जो है 58 से रिप्लेस किए, सेकंड को 50 से रिप्लेस किए, थर्ड को 42 से रिप्लेस किए। और इसे जो है इजियर वे में राइट करने का तरीका, यहाँ से 1 से स्टार्ट कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 9 10 11 12 13 14 15 16। एक बार बना के देखेंगे आराम से, आपको जो है ये बन जाएगा, समझ में आ जाएगा। तो फिक्स इनिशियल परम्यूटेशन होगा। फिक्स इनिशियल परम्यूटेशन में आप जो है बिट्स को जो है 1 to 64 बिट्स को जो है परम्यूट कर देंगे। परम्यूट होने के बाद अब आपका जो है काम होगा, वर्क होगा राउंड से रिलेटेड। तो यहाँ कई बार जो है क्वेश्चन पूछा जाता है 2 नंबर के लिए कि व्हाई नॉट यूज ओनली इनिशियल परम्यूटेशन। ठीक है, इनिशियल परम्यूटेशन को ही क्यों नहीं यूज किया जाता है। सो इन ऑर्डर टू सपोर्ट एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन विद पेस्टल स्कीम, सिर्फ जो है इनिशियल परम्यूटेशन जो है यूज नहीं कर सकते। ठीक है, व्हाई नॉट यूज ओनली इनिशियल परम्यूटेशन। तो पेस्टल स्कीम, पेस्टल एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन स्कीम जिस को जो है आपका डीएस जो है फॉलो करता है, तो उसे सपोर्ट करना है, तो उस केस में हमें जो है इनिशियल परम्यूटेशन का एग्जैक्टली जो है इनवर्स ऑपरेशन साइफरटेक्स्ट जनरेट करने के पहले जो है करना रहेगा। इसलिए हमको जो है सिर्फ आईपी या इनिशियल परम्यूटेशन करने से जो है काम नहीं चलेगा, एफपी ऑपरेशन भी करना रहेगा बिफोर जनरेटिंग सीटी। सो फाइनल परम्यूटेशन जो होता है वो इनवर्स प्रोसेस होता है इनिशियल परम्यूटेशन का। Initial permutation and final permutations are fully specified and do not add to security of base। यहाँ एक important point है, मैंने आपको पहले बताया कि आईपी और एफपी ऑपरेशंस जो है बेस में कोई भी विशेष जो है सिक्योरिटी ऐड नहीं करते हैं। इनका जो पर्पस है आईपी और एफपी का, जस्ट टू मेक द सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस ऑफ बेस स्लो। तो डेस के जो है सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन प्रोसेस को स्लोअर डाउन करना, ये जो है मेजर ऑब्जेक्टिव है आपके आईपी और एफपी ऑपरेशंस का। क्लियर है? तो इनिशियल परम्यूटेशन फिक्स है, फाइनल परम्यूटेशन जो है फिक्स है। फाइनल परम्यूटेशन जो है एग्जैक्ट जो है आईपी का रिवर्स ऑपरेशन है। सिर्फ जो है हम आईपी यूज नहीं कर सकते क्योंकि आपका डीएस पिस्टल स्कीम पे बेस्ड है। प्रॉपर एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन करने के लिए हमें जो है आईपी और एफपी ऑपरेशंस दोनों यूज करने रहेंगे। आईपी एफपी ऑपरेशंस जो है फुल्ली स्पेसिफाइड हैं। ये जो है आपके डेस के सिक्योरिटी में जो है कोई स्पेसिफिक जो है सिक्योरिटी लेवल को ऐड नहीं करते हैं, सिर्फ जो है ये यूटिलाइज किए जाते हैं आपके डेस के सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन को स्लोअर डाउन करने के लिए।
अब यहाँ पे हम एक राउंड का जो है डिटेल देखेंगे। तो प्रीवियस जो आपका ओवरऑल वर्किंग ब्लॉक डायग्राम था, उस ओवरऑल वर्किंग ब्लॉक डायग्राम में आप देख रहे हैं, अगर आपने अपने नोटबुक पे ड्रॉ किया होगा, तो पहला जो है MI मैसेज ब्लॉक आपने लिया हुआ है जो कि 64 बिट का है। उस रिस्पेक्टिव MI मैसेज ब्लॉक को आप IP के थ्रू प्रोसेस करते हैं, इनिशियल परम्यूटेशन के थ्रू जो है उसको पास करते हैं, जो कि आपका वन टाइम प्रोसेस है, जिसमें आप परम्यूटेशन ऑपरेशन वगैरह परफॉर्म कर रहे हैं। आफ्टर परम्यूटेशन जो भी IP का आउटकम आ रहा है उसको आप 16 राउंड्स के थ्रू जो है प्रोसेस करते हैं, 16 राउंड के थ्रू प्रोसेस करते हैं, और हर राउंड में जो है आप एक राउंड की जो है उसके साथ मिक्स करते हैं। तो राउंड की को मैंने बताया था 48 बिट का है। एक स्पेसिफिक राउंड को जो है मतलब आप 64 बिट जो है दे रहे हैं, तो वो 64 बिट कैसे जो है प्रोसेस होता है उसका जो है इंटरनल डिटेल्स यहाँ पे हम देख रहे हैं। So just consider this MI is the outcome of your IP. इनिशियली परम्यूटेड ब्लॉक है, मतलब मैसेज ब्लॉक जो था उस मैसेज ब्लॉक को आपने IP राउंड को दिया। IP राउंड को देने के बाद में इनिशियली परम्यूटेशन होने के बाद जो भी मैसेज आ रहा है 64 बिट का, वो आपके पास में यहाँ पे अवेलेबल हो रहा है, जिसे आप राउंड 1 को दे रहे हैं। तो ये स्पेसिफिक जो लॉजिक है, ये स्पेसिफिक जो पर्टिकुलर ब्लॉक है, ये आपके राउंड 1 का ब्लॉक है। तो राउंड 1 में जो है जो भी ब्लॉक आपका आ रहा है जो कि 64 बिट का है, इसको आप जो है 2 पार्ट में डिवाइड किए। क्रिस्टल स्कीम आप देखेंगे तो उसमें भी जो है ऐसा ही स्ट्रक्चर है। उसमें भी जो है मैसेज ब्लॉक को आप 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, लेफ्ट और राइट। राइट पार्ट को जो है एक स्क्रैम्बलिंग फंक्शन के थ्रू जो है आप प्रोसेस करते हैं, की मिक्स करते हैं, और उसके बाद आखिरी में जो है XOR ऑपरेशन परफॉर्म करके एक स्पेसिफिक जो है मतलब आउटपुट जनरेट करते हैं या CT जनरेट करते हैं कंसर्न राउंड का। तो यहाँ आप देख रहे हैं जो आपका इनिशियली परम्यूटेड ब्लॉक है या मैसेज ब्लॉक है, तो उस मैसेज ब्लॉक को आप जो है 2 पार्ट में डिवाइड किए। पहला पार्ट है LI, दूसरा पार्ट है RI। ठीक है, तो डेफिनेट है दोनों जो है एग्जैक्टली जो है 32 बिट ईच रहेंगे। लेफ्ट पार्ट भी जो 32 बिट का है, राइट पार्ट भी 32 बिट का है। अब राइट पार्ट पे आपका जो है प्रोसेसिंग हो रहा है, तो राइट पार्ट को आप जो है आपके स्क्रैम्बलिंग फंक्शन को दे रहे हैं। तो ये जो आपका ब्लॉक दिख रहा है यहाँ पे, ये स्पेसिफिक ब्लॉक जो है ये आपके स्क्रैम्बलिंग फंक्शन का ब्लॉक है। ठीक है, ये जो है फंक्शन है जो कि हम लोगों ने क्रिस्टल स्कीम के केस में एक सर्कल में F वगैरह ड्रॉ करके जो है इंडिकेट किया हुआ था। ठीक है, तो उस रिस्पेक्टिव फंक्शन को आप जो है की वगैरह भी देते हैं। तो सेम जो है फंक्शन यहाँ पे डेज के लिए जो है बनाया गया है। तो इस फंक्शन के अंदर में क्या हो रहा है उसे देख रहे हैं। तो राइट पार्ट जो भी आपका है, इस राइट पार्ट को जो कि 32 बिट्स हैं, पहले एक्सपैंड किया जा रहा है। एक्सपैंड किया जा रहा है इन द सेंस 32 बिट इनपुट आप दे रहे हैं, उस रिस्पेक्टिव 32 बिट का ही यूटिलाइजेशन करके उन्हीं बिट्स को जो है मतलब रीयूज करके उनको जो है 48 बिट में जो है कन्वर्ट किया जा रहा है। So first what we are doing, we are expanding our right side 32 bits. राइट पार्ट जो भी आपका है, राइट पार्ट को जो एक्सपैंड कर रहे हैं एक्सपेंशन फंक्शन के थ्रू, 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं। इन 48 बिट में कन्वर्टेड बिट्स को जो है हम XOR कर रहे हैं। यहाँ पे आपका XOR ऑपरेशन परफॉर्म होगा। XOR ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, XOR ऑपरेशन परफॉर्म करके जो है राउंड की को जो है यहाँ पे मिक्स कर रहे हैं। तो 48 बिट का जो आपका राउंड की है K1, 48 बिट का जो एक्सपांडेड आपका जो बिट है। अब ये एक्सपेंडेड बिट्स जो भी हैं इनके ऊपर में XOR ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में फिर फर्दर जो है यहाँ पे जो S बॉक्सेस आप देख रहे हैं, तो इन S बॉक्सेस के थ्रू जो है हम सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं। तो सब्स्टिट्यूशन ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं इन द सेंस एक स्पेसिफिक जो S बॉक्स है, सब्स्टिट्यूशन बॉक्स है, ये 6 बिट इनपुट लेगा। देखिए यहाँ पे जो है टोटल नंबर ऑफ S बॉक्सेस हैं 8। ठीक है, तो 8 S बॉक्सेस हैं। एक सिंगल S बॉक्स जो है 6 बिट इनपुट लेगा। यहाँ पे टोटल जो है आपके 48 बिट्स हैं। फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, राइट पार्ट जो है आपका 32 बिट का है। 32 बिट्स को जो है आप पहले एक्सपैंड करते हैं, 48 बिट में कन्वर्ट करते हैं। 48 बिट्स को जो है आप XOR करते हैं विथ योर राउंड की। XOR होने के बाद जो भी रिजल्ट आता है उस रिस्पेक्टिव रिजल्ट को आप S बॉक्सेस के थ्रू प्रोसेस करते हैं। सो वी आर हैविंग टोटल 8 S बॉक्सेस। सिंगल S बॉक्स इज गोइंग टू
take 6 bit as a input, it's going to produce 4 bit as a output. तो एक यस बॉक्स 6 बिट इनपुट लेगा, 4 बिट आउटपुट रिजल्ट करेगा, तो ओवरऑल जो है 8 यस बॉक्सेस के थ्रू आपको जो है 32 बिट जो है आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, कुल मिलाकर के एक्सऑर ऑपरेशन जहां पे आप राउंड की मिक्स कर रहे हैं 48 बिट का, तो राउंड की मिक्स करने के बाद में, एक्सऑर ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद में जो भी आपके पास में आउटपुट रिजल्ट होता है जो 48 बिट्स हैं, उन 48 बिट्स को हमें 32 बिट में कन्वर्ट करना है। 32 बिट में कन्वर्ट करने के लिए हम एस बॉक्सेस यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस यूज कर रहे हैं। एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूशन बॉक्स, एक सिंगल एस बॉक्स जो है 6 बिट को इनपुट लेगा और 4 बिट आउटपुट रिजल्ट करेगा। तो कैसे वो इनपुट 6 बिट्स लेता है और 4 बिट रिजल्ट करता है, उसको हम आगे देख रहे हैं। बट यहाँ अभी आप ध्यान में रखिए कि आपके जो स्क्रैम्बलिंग फंक्शन है डेस का, इस रिस्पेक्टिव डेस स्क्रैम्बलिंग फंक्शन में राइट पार्ट को पहले एक्सपैंड किया जाएगा, 32 बिट से जो है 48 बिट में जो है कन्वर्शन होगा। एक्सपांशन फंक्शन कैसे वर्क करता है उसको भी हम आपको बता रहे हैं। तो 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट करेंगे, 48 बिट के साथ में जो है राउंड की जो कि 48 बिट का है उसको जो है एक्सऑर करेंगे। एक्सऑर करने के बाद में आउटपुट जो भी रिजल्ट हो रहा है उस रिस्पेक्टिव आउटपुट को 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस के थ्रू जो है प्रोसेस किया जाएगा। एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन बॉक्स जो है 6 बिट इनपुट लेता है और सिंगल जो है सब्स्टिट्यूशन बॉक्स जो है आपका 4 बिट आउटपुट रिजल्ट करता है। तो टोटल हमको जो है 32 बिट्स मिले। इन 32 बिट्स को जो है फिर हम जो है परम्यूट करेंगे। परम्यूट करने के बाद में परम्यूटेड जो भी रिजल्ट रहेगा उस रिस्पेक्टिव रिजल्ट को हम यहाँ पे एक्सऑर करेंगे लेफ्ट पार्ट के साथ में। तो परम्यूटेड रिजल्ट जो भी 32 बिट है डेफिनेट है, मतलब यहाँ पे परम्यूट होने के बाद में 32 बिट ही आएगा। 32 बिट जो है एक्सऑर करेंगे, एक्सऑर करने के बाद RI+1 जो है जनरेट करेंगे और प्रीवियस जो भी आपका RI है उस RI को एज इट इज हम कॉपी करेंगे एंड विल मेक इट एज एन LI+1। ये सिंगल राउंड का डिटेल है। ऐसे ही जो है आपके 16 इटरेशंस परफॉर्म होंगे, मतलब जैसे LI+1 हो गया, RI+1 हो गया। अब इसके बाद सेकेंड राउंड के लिए जो है इनको जो है प्रोसेस करेंगे सिमिलर फंक्शन के थ्रू। आप पहले जो है यहाँ पे एक्सपांशन करेंगे, 32 बिट को 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट करेंगे। राउंड की को जो है मिक्स करेंगे, राउंड की मिक्स करने के बाद सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस के थ्रू फिर से जो है उनको जो है सब्स्टिट्यूट करेंगे, 48 बिट को 32 बिट में कन्वर्ट करेंगे, परम्यूटेशन परफॉर्म करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। तो ओवरऑल इस तरह से जो है 16 जो है राउंड्स के थ्रू आप अपने जो है मैसेज ब्लॉक को प्रोसेस करेंगे और आखिरी में जो है FP ऑपरेशन वगैरह जो भी है आपका उसको परफॉर्म करके साइफर टेक्स्ट को आप जो है रिजल्ट करेंगे। इसमें किसी को कोई डाउट है अभी फिलहाल इस रिस्पेक्टिव राउंड डिटेल में? किसी को कोई डाउट है क्या? इंटरनल्स हम आपको जो बता रहे हैं, मतलब एक्सपांशन कैसे कैरी हो रहा है, सब्स्टिट्यूशन कैसे कैरी हो रहा है, उसके बिहाइंड क्या लॉजिक है, उसको हम आपको आगे बता रहे हैं। बट फिलहाल यहाँ पे आप समझ लीजिए कि एक स्पेसिफिक जो है ब्लॉक को पहले हम जो भी मतलब इनिशियली परम्यूटेड ब्लॉक है उसको हम दो पार्ट में डिवाइड करें, लेफ्ट और राइट। राइट पार्ट को जो है 32 बिट को जो एक्सपैंड करके 48 बिट में कन्वर्ट करते हैं। 48 बिट के साथ में राउंड की 48 बिट का जो है एक्सऑर करते हैं, रिजल्ट 48 बिट आता है। उन रेस्पेक्टिव 48 बिट को सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस के थ्रू प्रोसेस करेंगे। 8 एस बॉक्सेस हैं जो कि 6 बिट जो है इनपुट लेते हैं और 4 बिट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। तो आपको जो है 32 बिट आउटपुट मिल जाएगा। परम्यूट करेंगे, परम्यूटेशन का जो भी रिजल्ट आएगा 32 बिट उसको एक्सऑर करेंगे लेफ्ट पार्ट के साथ में और RI+1 जनरेट करेंगे। सिमिलरली जो आपका RI है उसको एज इट इज कॉपी करके LI+1 जो है बना लेंगे। तो ये एक राउंड का डिटेल है। ऐसे जो है 16 राउंड्स होंगे, 16 राउंड की आपके जो है पर्टिकुलरली मिक्स होंगी और आखिरी में FP ऑपरेशन परफॉर्म करके आप साइफर टेक्स्ट जो है जनरेट करेंगे। तो ये अपने ओन वर्ड्स में जो आप राइट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे है मैसेज ब्लॉक जो है 64 बिट का, उसको स्प्लिट किए दो पार्ट में, LI और RI। राइट ब्लॉक को जो है उसको जो है कॉपी कर लिए और बना दिए LI+1। राइट हाफ ब्लॉक जो RI है उसको एक्सपेंड किए 48 बिट में। एक्सपेंड करने के बाद में उसको जो है राउंड की को जो है मिक्स कर दिए 48 बिट का। इसके बाद 8 एस बॉक्सेस हैं जो कि 6 बिट इनपुट लेते हैं, 4 बिट आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं।
तो आपका जो है 32 बिट का आउटपुट मिल जाएगा। देन रिजल्टिंग 32 बिट्स को जो परम्यूट करेंगे और परम्यूट करके एक्सऑर वगैरह ऑपरेशन लेफ्ट पार्ट के साथ में परफॉर्म करके Ri+1 जनरेट कर देंगे। इन पॉइंट्स को आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ पे एक्सपांशन फंक्शन जो है उसको हम लोग देख लेते हैं। तो एक्सपांशन फंक्शन जैसे मैंने आपको बताया कि पहला जो है यहाँ पे एक्सपैंड फंक्शन, मतलब 32 बिट्स को जो है हम एक्सपैंड करते हैं, मतलब यहाँ पे 32 बिट को एक्सपैंड करेंगे 48 बिट में कन्वर्ट करेंगे। तो हमारे पास एक्सपेंशन के लिए जो इनपुट है वो 32 बिट का है, तो 32 बिट्स का ही यूटिलाइजेशन करके 48 बिट में एक्सपेंशन होता है। वो कैसे हो रहा है यहाँ पे आप देखिए, और इसे बनाने का तरीका भी जो है सिंपल है। आप 32 से जो है स्टार्ट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, इसके बाद जो है 5 के बाद जो है आप क्या कीजिएगा, 4 से फिर से स्टार्ट कीजिए, 4 5 6 7 8 9, 9 तक आने के बाद आप यहाँ पे 8 से आप स्टार्ट कर लीजिए, 13 तक आए, फिर 12 से आप स्टार्ट कर लीजिए। तो ओवरऑल जो आपके पास 32 बिट्स हैं, 1 to 32 बिट्स, उन्हीं में के कुछ बिट्स को आप जो है फिर से जो है रीयूज कर रहे हैं, और रीयूज करके जो 32 बिट्स हैं उनको जो है 48 बिट में कन्वर्ट करें। आपके पास जो बिट्स हैं वो फिक्स हैं, 32 बिट्स ही हैं, उन्हीं 32 बिट्स को आप जो है 48 बिट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एक्सपैंड कर रहे हैं, और एक्सपैंड करने के बाद में जो है उस रिस्पेक्टिव एक्सपैंडेड बिट के साथ में, इन 48 बिट्स के साथ में आप राउंड की को जो है मिक्स कर रहे हैं, जो कि यहाँ पे दिख रहा है। तो एक्सपेंशन फंक्शन 32 बिट इनपुट, 32 बिट्स का यूटिलाइजेशन करके आप जो है 48 बिट जो है जनरेट कर रहे हैं, और फिर राउंड की को मिक्स कर रहे हैं। तो फंक्शन का एक्सपेंशन जो है इजियर है, 32 बिट को 48 बिट में कन्वर्ट करना इजियर है। एक्सऑर ऑपरेशन आपको मालूम है, सिंपल बेसिक एक्सऑर ऑपरेशन जो 48 बिट के साथ में यहाँ पे जो है परफॉर्म होगा, और आखिरी में 48 बिट रिजल्ट करेगा। अब फर्दर जैसे सब्स्टिट्यूशन वगैरह से रिलेटेड डिटेल्स हैं, तो हम लोग जो है अगले क्लास में देखेंगे। ये जो है इनिशियल परम्यूटेशन का डिटेल है। एस बॉक्स का जो है यहाँ पे जो है सिंपल सा जो हम आपको बता दे रहे हैं कि जो है 6 इनपुट हम देते हैं अपने एस बॉक्सेस को, 6 बिट्स इनपुट देते हैं, I1 I2 I3 I4 I5 एंड I6। सो 6 बिट इनपुट, 4 बिट एज आउटपुट, ठीक है। तो ये जो है आपका इनपुट और आउटपुट जो है टोटली इस जो है टेबल के ऊपर में जो है बेस्ड रहता है। तो I1 और I6 जो होता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं फर्स्ट एंड 6 जो इनपुट बिट्स हैं, दे विल सिलेक्ट रो बिटवीन 0 एंड 3। तो 0 और 3 के बीच में जो है ये पहला और जो छठवां, मतलब I1 एंड I6 जो है, ये आपके जो है इस रिस्पेक्टिव टेबल से जो है रो को सिलेक्ट करेंगे। बिटवीन 0 एंड 3 ये जो है फर्स्ट एंड लास्ट आपका इनपुट जो है रो को सिलेक्ट करेगा। इसके बाद जो आपके 4 मिडल बिट्स हैं, I2 I3 I4 एंड 5, ये 4 मिडल बिट्स जो हैं 0 to 15 के बीच में जो है कॉलम को जो है सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ 0 to 15 जो भी है, इनके बीच के जो है कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, और कॉलम को सिलेक्ट करने के बाद में ये जो है आपको जो है टेबल एंट्रीज से 4 बिट जो है आउटपुट जो है रिजल्ट करके देंगे। तो ये आपके 4 आउटपुट्स होते हैं। तो हमारे पास इस तरह के जो सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं वो 8 हैं, 8 सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस हैं। एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन बॉक्स जो है 6 बिट इनपुट लेता है, इन द सेंस टोटल जो है मतलब 48 बिट इनपुट आप लिए, इसको जो आप क्या कर रहे हैं, एक सिंगल सब्स्टिट्यूशन बॉक्स जो है 4 बिट आउटपुट रिजल्ट करता है। तो 8 जो है सब्स्टिट्यूशन बॉक्सेस आपको जो है 32 बिट आउटपुट जनरेट कर देंगे, तो जो कि 48 बिट को जो है 32 बिट में जो आप इजियर वे में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे हम स्टॉप करते हैं। अगले क्लास में जो है और जो भी बचा हुआ पोर्शन है इसके, मतलब इंटरनल डिटेल्स या इससे रिलेटेड वर्किंग, एक्सपेंशन फंक्शन, परम्यूटेशन बॉक्सेस, की जनरेशन प्रोसेस, पैरिटी डिस्कार्ड प्रोसेस, तो उन सबको जो है हम और डिटेल में नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बट आपसे एक्सपेक्टेशन है कि आप जो अभी मैंने बताया है उन पॉइंट्स को आप जो है ध्यान में रखिए। और मेजर इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे जो है इसके बेसिक्स, तो 64 बिट का जो है आपका पीटी है, राउंड की जो है मतलब आपके 48 बिट के हैं, मास्टर की जो है आपका 56 बिट का है। तो ये जो भी डिटेल्स हैं, इन डिटेल्स को जो है प्रॉपर जो है आप जो है ध्यान में रख लीजिए, और इसी पे बेस्ड जो है आज आपका जो पर्टिकुलर टेस्ट है तो बेस पे बेस्ड है।
और जो पॉइंट्स मैंने अभी आपको स्पेसिफाई किए इन्हीं के ऊपर में जो है आपका ऑनलाइन असेसमेंट टेस्ट है, तो उसको प्रॉपरली आप अपीयर कीजिए। मेरा अंदाजा है टेस्ट आपका जो 11 बजे एक्टिव हो चुका है, तो 11 to 11:30 का जो है टेस्ट है, आप टेस्ट को अपीयर कीजिए। इनकेस किसी कोई डाउट है, कोई प्रॉब्लम है, तो भी आप हमसे पूछ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास में हम चीज़ों को फिर से जो है कंटिन्यू करेंगे। किसी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एनीवन? थैंक यू वेरी मच।